علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں رمشا ساجد اور میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی پر ایک اور فرد جرم ثابت ہو گیا۔ غیر قانونی مکمل سے ایک خوش و خرم خاندان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ بشرا بی بی سے دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ 5 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ فیصلہ جج قدرت اللہ نے سنایا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر سیکشن 496 کے تحت غیر قانونی نکاح ثابت ہوتا ہے کہ اس کا تفصیلی تحریری فیصلہ 50 صفحات پر مشتمل ہے۔ غیر شرعی اور غیر قانونی نکاح، ملزمان نے اخلاقی اقدار کا پاس کیا اور نہ ہی مذہبی پابندیوں کی پرواہ کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدت کے معاملے پر جھوٹ سامنے آ گیا۔ غیر قانونی عمل سے ایک خوش و خرم خاندان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں سینئر سول جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ گزشتہ روز 14 گھنٹے کی طویل سماعت کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ کیس میں بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانی کا، ان کے ملازم لطیف مفتی سعید اور نکاح کے گواہ اون چودھری سمیت دیگر گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 342 کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کے فیصلے کے بعد بیرسٹر گوہر سے نمائندہ بول نیوز محمد علی جان خان کی خصوصی گفتگو ہوئی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے۔ دوران عدت نکاح کیس کے فیصلے پر ماہر قانون حافظ احسان احمد نے کہا ہے کہ کیس کی شہادتیں اور بیانات میں بہت سے تضاد سامنے آئے ہیں اور خلاف کے دوران عدت نکاح کیس کے فیصلے کے بعد بیرسٹر گوہر سے نمائندہ بول نیوز محمد علی جان نے بھی گفتگو کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پر ایک اور فرد جرم عائد ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا۔ غیر قانونی عمل سے ایک خوش اور خرم خاندان کو تباہ کر دیا گیا۔ بشرا بی بی سے دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ 5 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ فیصلہ جج قدرت اللہ نے سنایا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو نمائندہ بول نیوز محمد علی جان خان کی خصوصی گفتگو ہوئی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ علی جان خان چیئرمین پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آج دوران عدت نکاح کا کیس کا فیصلہ آیا۔ پہلے سائفر کیس، پھر توشہ خانہ کیس اور اب دوران عدت نکاح کا کیس۔ کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ اس فیصلے سے مورل ویلیوز کس طرح متاثر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، مورل ویلیو وہ لوگ کہیں گے کہ اس سے متاثر ہوتی جس نے امورل کام کیا ہو۔ نکاح تو سنت اور عدت کے بعد ہی نکاح ہوا ہے۔ ایک بندہ جو 2 مہینے جیل میں رکھ کر کے لایا جاتا ہے، وہ اپنے ہی بھی بچوں کی والدہ پہ الزام لگاتا ہے اور بیہودہ قسم کا الزام لگاتا ہے، غلط اور بے بنیاد الزام لگاتا ہے، اور وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ان کو لے کے آ جاتے ہیں، اور جج صاحب 2 دن کے اندر 14 گھنٹے کمپلیٹ کر کے ٹرائل کمپلیٹ کرتا ہے۔ ایسے سرکمسٹانسز میں آپ کہیں کہ رائٹ سارے وائلیٹ ہوئے، ایویڈنس نہیں کرنے دیا گیا، کراس ایگزامینیشن میں نہیں دیا، ابھی بھی جج صاحب نے ججمنٹ سائن نہیں کی ہے، ابھی بھی کاپی جج صاحب نے ہمیں نہیں دی ہے۔ یہ سارے کے سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے۔ ایویڈنس ہو نہ ہو، جج نے انہیں کنوکشن دے دینی ہے، لیکن عوام کی عدالت ہے خان صاحب کی، انشاءاللہ عوام کی عدالت میں سے رخرو ہوں گے۔ دنیا دیکھے گی جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے، دنیا ان پہ لعنت کرے گی۔ اچھا سر، لاسٹلی یہ بتا دیجئے گا، 8 فروری سر پر ہے، خان صاحب نے قوم کو بھی پیغام دیا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی خان صاحب شاید جیل کے اندر ٹوٹ گئے ہیں۔ آپ نے بھی آج باڈی لینگویج دیکھی اندر، میں نے بھی دیکھی، مجھے تو لگ رہا ہے خان صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ بالکل الحمدللہ خان صاحب مضبوط ہے۔ جن کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، جو ڈیلوں کی طرف جاتے ہیں، جو رو پڑتے ہیں، خان اس میں سے کبھی نہیں ہے ایسے جیسا کبھی دنیا میں نہیں دیکھا کہ اتنے اسٹرانگ آدمی ہو۔ ان کا ہر وقت جو ایک منٹ ہے وہ عوام کے لیے، وہ ہم سے پوچھتے بھی عوام کے بارے میں، آج بھی ہیں تو مجھ سے زیادہ تر ڈسکشن انہوں نے الیکشن کے سلسلے میں کی ہے، دن کے اپنے کیسز کے سلسلے میں کی ہے۔ بالکل جب جیل میں اپنے بیرک میں انٹر ہو رہے تھے، جس کے دروازے تک میں ان کے ساتھ گیا ہوں، اس وقت بھی اس نے مجھے الیکشن ریلیٹڈ ڈائریکشن دی ہے، بجائے اس کے اپنے کیس۔ علی جان، اور اب بات کریں گے عام انتخابات 2024 کی۔ میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا دور سستا ترین دور تھا، ان کے بعد دالوں نے ملک کو تباہ کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یو لو می آئی لو یو ٹو۔ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچا کر کہتے ہیں کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے، اصل پاکستان کی یوتھ یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن سب سے کم تھی۔ نواز شریف کا دور سستا ترین دور تھا۔ آج کتنے کی روٹی ہے بولو؟ 20-25 روپے کی روٹی اور نان ہے۔ بتاؤ کتنا ظلم ڈھایا ہے انہیں غریب عوام کے اوپر۔ If you love me then I love you too۔
ये सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की। ये असल यूथ जो मेरे सामने बैठी हुई है, वो यूथ नहीं, ये यूथ जो असल पाकिस्तानी है, बड़े छोटे का एहतराम करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी और डॉलर की कीमत भी सबसे कम नवाज शरीफ के दौर में थी। तरक्की की रफ्तार 6% हो गई। दौर याद करो जब नवाज शरीफ वजीर आजम था तो पाकिस्तान में सी पैक आया और पाकिस्तान के अंदर 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी और ये धरने कर रहे थे, ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे। आओ इंतकाम की सियासत को दफन और खिदमत की सियासत का आगाज करें। गुजरावाला से 8 फरवरी को नून लीग 20 सीटें जीतने जा रही है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा कि वो जलसा जिसने बाजी पलटी, वो तकरीर भी गुजरावाला में की थी। वो वायरल बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इस वायरल बीमारी ने बहुत नुकसान किया था, उसे गुजरावाला ने ही मार भगाया था। नवाज शरीफ ने रोजगार देने, रोटी सस्ती करने और मुल्क की तरक्की का वादा किया है, वो निभाएंगे। अल्लाह ताला 8 फरवरी को 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हो। नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर, वो जलसा जिसने बाजी पलट के रख दी थी, वो भी गुजरावाला में हुआ था। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी, उसको सबसे पहले गुजरावाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना, जब वो गुजरावाला से गुजरे तो उनको नीवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से, डर गए थे आपसे। और अब वो अल्लाह के फजल से वो वायरल बीमारी, जो वायरल इन्फेक्शन थी, पिछले 5-7 साल रही लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब मैं आज गुजरावाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूँ कि नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो देगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया कि आपको 50 लाख घर देगा तो देगा इंशाअल्लाह। बाकी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मियाँ साहब 3 बार वजीर आजम रहे लेकिन सिंध के लिए उन्होंने काम नहीं किया। थरपारकर की तहसील छाछरों में बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा ये लोग आपका वोट लेकर रायवंड और लाहौर की खिदमत करेंगे। वो चाहते हैं उनकी कठपुतली कराची में बैठकर आपके हुकूक पर डाका मार सके। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। वो सियासत नहीं, जाती दुश्मनी की हद तक सियासत को लेके गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखती। मियां साहब 4 बार वजीर आजम रहा, मगर इसलिए कि उसने कभी सिंध पे ध्यान नहीं दी, कभी सिंध में काम नहीं किया। आपका वोट लेके रायवंड का खिदमत करेंगे। आपने इनको भी शिकस्त दिलवाना है। मियां साहब का ये कोशिश है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान पे मुसलत हो, मगर उनका कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे ताकि वो आपके हक पे डाका मार सके, आपके वसाइल पे डाका मार सके। अगर वो मेरे करूंजर तक हाथ फराते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके वो हाथ काटेंगे। खुल्लम खुल्ला सियासी सरगर्मियों पर हमले हो रहे हैं। खदशा है कि 8 फरवरी को कराची में फसादात ना बढ़ जाएं। हालात खराब हुए तो ये पीपल्स पार्टी के हक में नहीं होगा। सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी शहर में खुद को जीता हुआ देख रही है। वो ऐसा क्यों करेगी? जिन्हें हार का खौफ है वो मनफी सरगर्मियों में मुलविस है। पीपी चाहती है कि इलेक्शन पुरअमन हो। वाकयात उससे पहले भी होते रहे, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई कि अगर इलेक्शन कमीशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी तो खुदा न खास्ता शहर में ये वाकयात किसी और बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकते हैं। कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो चंद दिन बाद है। अगर खुदा न खास्ता ये हालात कंट्रोल में नहीं आते हैं तो मैं ये समझता हूँ, मुझे ये खौफ है, ये डर है कि 8 फरवरी को कहीं खुदा न खास्ता शहर के अंदर ये फसादात ज़्यादा न बढ़ जाएं और ये किसी भी तौर पर
اس شہر کے اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں دیکھ رہی ہے کہ ہم کراچی شہر میں اچھی خاصی نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی جیت سکتے ہیں، ہمارے تو بالکل بھی حق میں نہیں۔ یہ حرکتیں اس قسم کے واقعات میں جو ملوث قوتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کو انتخابات میں اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو کل افسوسناک واقعہ نی کراچی سیکٹر 11J میں ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ متحدہ قوم موومنٹ کے خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے اور جس طرح سے وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے رہے، تو انہوں نے یہ سارا سیناریو انہیں ڈیولپ کیا۔ پیپلز پارٹی والوں میں انسانیت نہیں، یہ نہتے افراد پر گولیاں چلاتے ہیں۔ مسرور احسن دھمکی دیتا ہے 9 فروری کے بعد دیکھ لوں گا۔ MQM رہنماؤں کی نیوز کانفرنس فیصل سبزواری بولے اسلحے پر پابندی کا مطالبہ کیا تو سب سے زیادہ تکلیف پیپلز پارٹی کو ہوئی۔ معلوم ہے ڈاکٹر عاصم کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، سوشل ورک کے نام پر کیا دھندے کر رہا ہے، اس کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی گینگ وار کو کراچی پر پھر مسلط کرنا چاہتی ہے۔ پارٹی کا امیدوار ہے تو وہ گولی نہیں چلوا سکتا تھا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں کس طریقے سے ویگو گاڑیوں میں وہاں پر آئے ناظم آباد میں اور کیا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ ان کو گرفتار کریں، درست FIR کاٹیں۔ جو لوگ امن عامہ کے دشمن ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور جس کے ایما پر ہو رہا ہے، بھلے وہ ڈاکٹر عاصم ہو، سعید غنی ہو، وقار مہدی ہو، مسرور احسن ہو، جو بھی ہو، لیکن ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، صوبائی وزارت داخلہ کی، صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب کی۔ 5-6 دن رہ گئے آپ لوگوں کو نگرانوں، 5-6 دن رہ گئے۔ خدارا اب اپنی عزت پہ لگنے والے داغ کو مٹا لیجئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جناب کارروائی کریں ان لوگوں کے خلاف جو تشدد کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جو لوگ تشدد کا نشانہ بنے۔ ہم اپنے کارکنان سے اپیل کرتے ہیں اشتعال میں نہیں آنا ہے، ان کے ہر گولی کا، ان کی ہر گالی کا، ان کے ہر ظلم کا جواب ہم نے اپنے ووٹ سے دینا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں انتخابی مہم کے دوران کھلے عام اسلحے کا استعمال ہو رہا ہے، جن کا مینڈیٹ نہیں، وہ لوگوں کو ڈرا کر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ MQM ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر سودے بازی کرتی رہی ہے۔ کہ یہ پارٹیاں کھلے عام اسلحہ لے کر گھوم رہی ہیں، فائرنگ کر رہی ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی سازش ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو قسم مبتلا کر کے ٹرن آؤٹ کم کیا جائے، اور ٹرن آؤٹ کم کر کے اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہیں تو یہ دونوں پارٹیاں اٹھا سکتی ہیں۔ کہ جو پارٹیاں عوام میں غیر مقبول ہیں، جن کے لیے اب عوام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، لوگ مسترد کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کی کیونکہ ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت گری اور لاشوں کی سیاست کے نتیجے میں لوگوں کو الیکشن کے عمل سے دور رکھ کر ہی مینیپولیشن چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیں۔ عوام اس سازش کو مسترد کریں، خوف کے بت توڑیں اور 8 فروری کو بڑے پیمانے پر ووٹ ڈالیں۔ سندھ میں مقابلے کی فضا نہیں، پیپلز پارٹی سندھ بھر میں کلین سویپ کرے گی۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں اقتدار ملا تو پورے ملک میں مفت علاج کی سہولیات دیں گے۔ پیپلز پارٹی کو کارکردگی کی وجہ سے ہی نشستیں ملی ہیں، اسے کبھی لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ملی۔ مقابلے کی فضا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ ہوں آپ کے درمیان۔ تو جی سندھ میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا رسپانس ہمیں جتنی الیکشنز گزری ہیں اس میں ہر الیکشن میں مشکلات کے باوجود زیادہ نشستیں ہمیں سندھ میں ملتی ہیں، اور جو وہاں پہ ہم نے کام کیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کی تکمیل میں، ان کے منشور کے پورا کرنے میں، تو اس دفعہ تو ہم وہاں پہ سویپ کر رہے ہیں۔ جس طرح فری علاج دل کا، جگر کا، کینسر کا، گردوں کا، بچوں کا اور دیگر فیسلٹیز سندھ میں ہیں، اس طرح کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال پورے پاکستان میں ہوگی اور وہاں پہ سب کا علاج مفت ہوگا۔ جو بسپ کا ہمارا پروگرام تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا اور اس کی جو رقم ہے اس کو بھی آلموسٹ ڈبل کر دیا جائے گا۔ دہشت گردی ملک کے لیے نئی نہیں ہے۔ 2008 اور 2013 کے الیکشنز میں دہشت گردی کی گئی تھی۔ مرتضی سولنگی کی غیر ملکی میڈیا کے لیے نیوز کانفرنس کہا کہ یقین دلاتے ہیں الیکشن پرامن اور شفاف انداز میں ہوں گے۔ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے حصے میں پولیس، دوسرے میں رینجرز اور FC ڈیوٹی انجام دیں گے۔ کسی سیکیورٹی کی صورتحال پر فوری ایکشن ہوگا۔ And declare that we have become 5th
largest democracy in the world as we enter this process. 28.6 million voters will be exercising their right to vote. So we wanted to welcome you all and assure you that we have very good arrangements to ensure the security, providing security to polling stations in a 3-tier system, with police taking the main responsibility in the first perimeter, including the polling stations, with civil armed forces on the outer cordon perimeter, and Pakistan Army as the main quick reaction force on the outside perimeter. शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम, साबिक रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर बट बादा मुआफ गवाह बन गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में केस की समाअत। NA-53 में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। कहा 6 मई को लाल हवेली में 9 मई की प्लानिंग की गई। ATC ने बानी PTI शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फिर मेडिकल ग्राउंड पर रुख्सत मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त में कहा कि 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुख्सत दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त की तस्दीक कर दी है। जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला सुनाया है। उनकी अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस 13 फरवरी 10 फरवरी को बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड नैब केस मुकर्रर है। मोहम्मद बशीर की अदालत में आसिफ अली जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी ज़ेर समाअत हैं। इंतखाबात में पोलिंग के दौरान हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए साइट एरिया में पुलिस की जानिब से मशक़ें की गई। ज़िला किमाड़ी में 594 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 251 इंतहाई हसास और 343 हसास पोलिंग स्टेशन हैं। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में देखो। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात और मशकों का सिलसिला भी जारी। साइट एरिया में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए मशकें की गयी। SSP किमाड़ी आरिफ असलम राव का कहना है, मशकों का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटना है। 8 फरवरी को इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, तो जिला किमाड़ी पुलिस में हमने अपना सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुकम्मल। असलम राव का कहना है, जिला किमाड़ी में 594 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 251 इंतहाई हसास और 343 हसास पोलिंग स्टेशन हैं। तो इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट और एक्टिविटी होने जा रही है, तो उससे पहले आज ये जो आज का हफ्ते और इतवार का दिन है, इसमें हमने मुख्तलिफ डेमोन्स्ट्रेशंस और मशकें रखी हैं, और इसमें पुलिस को हम मॉक एक्सरसाइजेज के ज़रिए इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि पोलिंग के दिन पे हमारी ड्यूटी किस तरीके से होनी चाहिए, पोलिंग स्टेशंस को हमने किस तरीके से कवर करना है। मशकों का सिलसिला दीगर डिवीजन्स में भी मरहलावार जारी रहेगा। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। पेशावर पुलिस ने इंतखाबी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहमी से माजरत कर ली है। पेशावर पुलिस ने उम्मीदवारों को प्राइवेट रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड लेने का तहरीरी मशवरा दे दिया। पुलिस ने मजीद कहा कि पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के बायस उम्मीदवारों को देने के लिए इजाफी नफरी नहीं है। पुलिस सिक्योरिटी प्लान के जरिए दस्तयाब वसाइल के तहत इकदाम किए गए हैं। पेशावर पुलिस ने कहा कि तमाम उम्मीदवारों की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। आम इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मुतालिका इदारों के साथ साथ मुबस्सिरीन ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की जानिब से इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए 6000 मुबस्सिरीन तैनात किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से, जो इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेटर फाफिन रशीद चौधरी के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 में बस चंद ही रोज़ बाकी हैं, जहां इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इंतखाबात करवाने के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इस मरतबा क्या तैयारी कर रखी है और इलेक्शन के लिए मॉनिटरिंग के लिए किस निज़ाम के तहत वो जाएंगे फील्ड में। हमारे साथ मौजूद है नेशनल कोऑर्डिनेटर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क रशीद चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि फाफिन ने क्या तैयारी कर रखी है, कितनी बड़ी तादाद में आप अपनी फील्ड में ऑफिसर्स और मुबस्सिरीन को उतारेंगे, और अब तक आपने जो प्रोसेस है उसको किस तरह का पाया? हमारी जो लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन है जो इलेक्शन से पहले होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड है, यानी कि हर हल्के में हमारे ऑब्जर्वर मौजूद हैं। एक ऑब्जर्वर को इस वक्त इलेक्शन के जो प्रोसेस हैं, जो कैंपेन हैं, इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं।
इलेक्शन वाले दिन हमारे 6000 ऑब्जर्वर्स पूरे मुल्क में मौजूद होंगे और हम जो टोटल 90,000 कुछ जो पोलिंग स्टेशंस बन रहे हैं उनमें से कुछ 24,000 पोलिंग स्टेशंस के बाद में चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। NA 123 में नून लीग की कॉर्नर मीटिंग हुई है। रहनुमाओं ने कहा कि 8 फरवरी को अवाम की ताकत से नून लीग को कामयाब करवाएंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल। जी बिल्कुल, लाहौर भर में इंतखाबी मुहिम जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त बोल न्यूज़ इलेक्शन सेल की टीम NA 123 में मौजूद है, जहां से नून लीग के उम्मीदवार हैं साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और जो शहबाज शरीफ से आपकी इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं सीनियर नून लीग के रहनुमा मलिक जावेद इकबाल, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कैसी जा रही है आपकी कैंपेन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि हमारी जो कैंपेन है ये बड़ी कामयाबी के साथ है और बच्चा बच्चा मियाँ शहबाज शरीफ का नारा लगाता है, उसका साथ देने को, उनको जितवाने के लिए अपनी गली महल्ले में पूरी एफर्ट और पूरी कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कि इंशाअल्लाह शहबाज पाकिस्तान को हम बड़ी लीड के साथ यहाँ जितवा कर इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे, मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ नून लीग की रहनुमा शबीर अहमद उस्मानी साहब मौजूद हैं। जी उस्मानी साहब, क्या कहेंगे, 8 फरवरी को आप NA 123 से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कामयाब करवा पाएंगे? जी इंशाल्लाह, आप देख रहे हैं हर तरफ शहबाज शरीफ नज़र आ रहा है। यहाँ शहबाज शरीफ साहब के काम बोल रहे हैं, उनकी देखो आप ये फिरोजपुर रोड पे खड़े हैं, अभी आपको 1 महीना पहले सड़क बनती हुई नज़र आई है। पहले यहाँ पानी खड़ा होता था, ये पानी का 4 अरब का निकास का ये मसला हल हुआ है, खाने के मसाइल हल हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब देहातों में हर जगह जोश खरोश है और इंशाल्लाह मुखालफिन की ज़मानतें ज़ब्त होंगी। जी बिल्कुल, नून लीग की रहनुमाओं का कहना है कि 8 फरवरी के दिन NA 123 से शहबाज शरीफ जीतेंगे और मुखालफिन की जमानतें जो हैं वो जब्त की जाएंगी। बताएं कि न्यू कराची में MKM और पीपल्स पार्टी मुसल्लह तसादुम के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने दोनों जमातों के 34 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। तसादुम में गुज़श्ता रात बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए थे। जख्मी होने वाले 12 साल लड़के की कराची में सियासी कशीदगी बढ़ने लगी। 2 बड़ी जमातों की इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसल्लह तसादुम का दूसरा वाक़या पेश आ गया। गुज़िश्ता रात न्यू कराची में MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादुम हुआ। फायरिंग से 12 साल बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए। फायरिंग से जख्मी होने वाले लड़के की हालत तशवीशनाक है। लड़के को अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। वाक़े का मुकदमा पीपल्स पार्टी कारकुन की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस की जानिब से छापे भी जारी हैं। अब तक दोनों जमातों के 34 कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद फायरिंग के वाक़े में मुलविस अफराद को बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा। पाक फौज और FC का तुर्बत में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और FC के दस्तों ने सैलाब ज़दा इलाके सामी में मुतासर अफराद को निकालने के लिए कामयाब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान अवान से। जी सलमान, क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, तुर्बत के इलाके सामी के अंदर ये सैलाबी रेले की सूरत हाल थी, जिसके बायस कुछ शहरी फंस गए थे, लेकिन उनको निकालने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने और FC के दस्तों ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हेलीज का भी इस्तेमाल किया गया और जो तफसीलात सामने आई हैं उसका मकसद ये था कि ऑपरेशन के जरिए सैलाब से मुतासरा इलाके में फंसे हुए बच्चों समेत 9 अफराद को बुनियादी तौर पर निकाला गया है। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद को करीबी फ्रंटियर कोर कैंप में मुंतकिल किया गया। वहाँ पर उन्हें बरवक्त तिब्बी इमदाद और जरूरी अद्वियात भी फराहम की गई। तुर्बत के जो इलाका सामी जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, वहाँ पर शहरियों ने पाक फौज और FC के बरवक्त ऑपरेशन को सराहा है। जी आगाह कर रहे थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान अवान। मच हमले में दहशतगर्दों का झूठ बेनकाब हो गया। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को दुनिया में बदनाम करने की सोची समझी साजिश खुलकर सामने आ गई। दहशतगर्द अब्दुल वदूद का लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब्दुल वदूद मच ऑपरेशन में मारा गया। दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी। मच क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका।
फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से हमलों को नाकाम बनाया गया। हमले में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो गई। हमले में हलाक दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। दहशतगर्द अब्दुल वदूद को लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब्दुल वदूद मच हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मारा गया। दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने कहा, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस्लामाबाद में धरना देने वालों का सारा ड्रामा नाकाम हो गया। एक तो जो मारंग बलोच का पूरा ड्रामा था वो सारा बेनकाब हो गया। अभी आपको पता है इसमें एक लड़का जो जिसका नाम लिया जाता है ताकजई जो है वो सो कॉल्ड लापता अफराद की फहरिस्त में था और अभी डिस्कवर हुआ है। दहशतगर्द इम्तियाज भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा करने वाले और दहशतगर्द एक सिक्के के दो रुख हैं। मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। न्यू कराची सेक्टर 11F हनफिया मस्जिद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, मुल्जिमान की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए न्यू कराची सेक्टर 11F हनीफिया मस्जिद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस हुकाम का बताना है कि मुल्जिमान पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस की जानिब से एरिया जो है कॉर्डन करके नाकाबंदी शुरू कर दी गई है, जबकि जख्मी पुलिस एहलकारों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अब्बास शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का बताना है कि जख्मी एहलकारों में ताज मोहम्मद और जमीर शामिल है, जबकि जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। दोनों एहलकारों की हालत पुलिस के हुकाम की जानिब से बताया गया खतरे से बाहर है, तभी इमदाद देने का अमल जारी है। जी आगाह कर रहे थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे गजा की, जहां इस्राइली फौज का फ़लस्तीनियों के खिलाफ बदतरीन कत्लेआम जारी है। बमबारी में मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद, 148 जख्मी हो गए। इस्राइली फौज ने एक मरतबा फिर गजा के अलमल अस्पताल पर धावा बोल दिया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा बेगुनाह फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा के अलमल अस्पताल पर धावा बोल दिया। इसराइली जहरियत की वजह से अल नसर अलमल अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की शदीद किल्लत हो गई है। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। जनीन, नाबलौस, हेब्रोन में कार्रवाइयाँ की गयी। इसराइली फौज रफा ऑपरेशन का मंसूबा बना रही है। अमरीकी वफाकी अदालत के जज ने फैसला दिया है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब है। इसराइली हुकूमत के मुख्तलिफ अफसरान के बयानात इस बात की निशानदही करते हैं कि गजा में जारी फौजी मुहासरे का मकसद फलस्तीनियों को खत्म करना है। अमरीका गजा में इस नस्ल कुशी को रुकवाने में नाकाम रहा है। अदालत अमरीकी हुकूमत को इसराइल की हिमायत से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये इसके दायरे इख्तियार से बाहर है। और 10 सदर जो बाइडन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्विस 4 इसराइलियों पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। अमरीका, कनाडा, यूरोप और मुस्लिम मालिक में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज। न्यूयॉर्क सिटी में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से यकजहती का मुजाहरा। न्यूयॉर्क पुलिस ने तलबा पर तशद्दुद किया और हिरासत में ले लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के घर के सामने भी एहतजाज हुआ। अमरीकी सदर बाइडन के रियासत मिशिगन के दौरे के दौरान फ्री फलस्तीन के नारे लगे। हंगरी में एहतजाज पर पाबंदी के बावजूद अहले फलस्तीन के लिए मुजाहरा हुआ। ऑस्ट्रिया में भी फलस्तीन के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में मुजाहरे में तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। बहरीन में हजारों अफराद ने फलस्तीन से गजा पर इसराइली जहरियत की मजम्मत की। यमन और इंडोनेशिया में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकले। जैसे हुकाम वैसे अवाम। केप टाउन के दरो दीवार भी गजा में जारी मसालिम की दुहाई देने लगे। जनूबी अफ्रीका के शहर में मजलूम फलस्तीनियों से मुनफरिद अंदाज में यकजहती का इजहार हुआ। फलस्तीन को आज़ाद करो, गजा में सल्म बंद करो। केप टाउन की दीवारों पर नारों की भरमार है। इसारे यकजहती के लिए कहीं तरबूज तो कहीं जैतून पेंट कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका में इस मुहिम का इनेकाद अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की जानिब से किया गया। आर्टिस्ट तस्वीर की सूरत में गजा में ढाए गए मसालिम की मंजरकशी कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में यहूदी रहनुमा डैनियल ब्लोक ने भी आर्ट वर्क की हिमायत कर दी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस हमेशा फलस्तीन की हामी रही है। इसका रोज अव्वल से मौक़िफ़ है कि इसराइल मक़बूजा इलाके फौरी खाली करे।
अमेरिका में मुसाफिर बरदार तैयारा घर पर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक इंजन वाला छोटा तैयारा एक घर पर गिरकर तबाह हुआ। अमेरिका में एक इंजन वाले तैयारे के पायलट ने कंट्रोल टावर से अपने आखिरी राब्ते में बताया था कि इंजन फेल हो जाने के बायस उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तमाम तैयारा करीबी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। आग ने करीबी दरख्तों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू कामों के दौरान आग पर काबू पा लिया गया। पेरिस के मरकजी रेलवे स्टेशन पर चाकू के हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पेरिस के लियोन रेलवे स्टेशन में होने वाले हमले की वजह हमला आवर की कौमियत ताहाल सामने नहीं आई। पुलिस के मुताबिक हमला आवर से चाकू और इटली का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। ट्रेन पेरिस से स्विट्जरलैंड और इटली जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों की तरह लोअर कोहिस्तान पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ शम्सुर रहमान शम्स लोअर कोहिस्तान के एक इलाके में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन तफसील उन्हीं से जानते हैं। जी शम्स, बताइएगा कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर कोहिस्तान के इलाका जिजाल में मौजूद हूँ। यहाँ पे अभी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पहले गुज़श्ता रात से बारिशों का सिलसिला शुरू था, जबकि अभी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहर कराक्रम की अगर बात की जाए तो बारिशों के दौरान और बर्फबारी के दौरान यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा होता है। गुज़श्ता रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। अभी इस वक्त जो है यहाँ पे बर्फबारी शुरू है। मेरे अक़ब में आप देख सकते धुंध सा समा छाया हुआ है और चारों तरफ जो है बर्फ के ओले पड़ रहे हैं और ये मंजर बहुत हसीन है। जी, और अब खेलों की खबरों में आपको बताएं, डेविस कप टाई के सिंगल्स मुकाबले में भारत के राम कुमार ने एसामुल हक को शिकस्त दे दी। एसामुल हक पहले ही सेट में कामयाबी के बावजूद मैच हार गए। तीसरे और फैसला कुन सेट में राम कुमार और मानाथन ने एसामुल हक को 0-6 से शिकस्त दी। डेविस कप टाई के सिंगल्स मुकाबले में भारत के राम कुमार ने पाकिस्तान के एसामुल हक को शिकस्त दे दी। सिंगल्स मुकाबले में पाकिस्तान के एसामुल हक ने पहला सेट 7-6 से जीता था। भारत के राम कुमार रमांथन ने दूसरा सेट 6-7 से अपने नाम किया। तीसरे और फैसला कुन सेट में राम कुमार ने एसामुल हक को 0-6 से शिकस्त दी। तीसरे सेट के दौरान एसामुल हक ने मेडिकल टाइम आउट भी लिया था। 60 साल बाद भारतीय टीम आज पाकिस्तान में होने वाले किसी टेनिस के मुकाबले में हिस्सा ले रही है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा निकोलस केज की पहली बार साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म में एंट्री। लॉन्ग लेग्स के टीजर ने साबित कर दिया कि फिल्म रवा साल दुनिया भर में हॉरर पसंद करने वालों को मायूस नहीं करेगी। फिल्म 17 जुलाई को रिलीज होगी। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।